Hey, what is up, guys? Welcome or welcome back to my YouTube channel. Here I am with another vlog. So, today I am going to talk about all the important things. So, this is the most awaited vlog because I've been receiving so many questions on Instagram, on my YouTube channel about what things to do before and after coming to Melbourne. And everybody wanted me to vlog this in Hindi. बट अभी मैं सोच रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज़ करूँगी बिकॉज इट इज़ मच ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. And yes, but first I would like to talk about this product, which is Mamaearth's Vitamin C Daily Face Glowing Skincare Cream. And you know guys, my love for Mamaearth from a very long time. Even जब इन्होंने मेरे साथ collaborate भी नहीं किया था, I used to use every product from Mamaearth, even my skincare included their products. So I completely love and trust this product. And you know about this product. It is made for all skin types and it links your order to a tree they plant, which is so great. So what you have to do is just apply the cream like this. And this cream is super light. It completely absorbs in your skin. Look at it. And to talk about the products, it contains vitamin C, turmeric, niacinamide and glycerin. And you know the effects of them are super good. Vitamin C helps in skin brightening. Niacinamide helps in blemishes and dark spots. Then if we talk about turmeric, it's an antioxidant. I'm not sure if I said it earlier or not, but yes. And glycerin, it helps to lock in moisture in your skin. So you can use the coupon code which is on the screen right now to have 20% off on your next Mamaearth offer, and I'll be writing everything down in the description box from where you can buy this product and everything rest. So make sure you buy this product. So guys, now let's not delay more. Let's get ready and let's start with the vlog. Guys, I just realized that I have called somebody today for the video and वो भी ready नहीं हुए हैं. So she is just on the way. Till then, I thought of telling you more about the product. So this is a Indian brand. You can actually order it from Nykaa, Flipkart, Purple, and also the app, the Mamaearth app. All the links would be given in the description box down below. I think I have said it earlier, but still, because this is a plastic positive brand and you know about it, yeah, right? I love this brand. And I think जिनका मैंने वेट कर रही हूँ, she's almost there. So let us wait for her. So guys, for this मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स पुट किया है. दीदी ने भी shit. चलेगा. दीदी ने बोलता दीदी नहीं बोलना, but I'm keeping this raw. So this is Simona Didi, might have seen in my previous vlogs as well. So she is also here from past couple of months, maybe 10-11 months now, almost. And मेरे को तो 8 months हुए हैं. तो I thought कि अगर हम इस सेशन में मतलब किसी अच्छे से एजुकेटेड इंसान को जिसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है बिठाएं तो दैट वुड बी मच ग्रेट. सो एंड मैंने थोड़ा सा हमारे व्लॉग को रियलिस्टिक दिखाने के लिए कॉफ़ी नहीं सॉरी ग्रीन टी भी बनाया है. प्लीज़ अप्रिशिएट माय एफर्ट्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट गाइस. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपने अप्लाई कैसे किया मेलबर्न के लिए. सो सिमोना दीदी, हाउ डिड यू अप्लाई? So I initially applied through an agency. There was an agency in India called Global Opportunities. तो मैं उनके पास गई थी. I told them that I want to study further in marketing and they gave me a couple of options कि कौन से universities है ऑस्ट्रेलिया में, because I was keen कि मुझे ऑस्ट्रेलिया या तो न्यूजीलैंड करना है. And then I came down to the option of going to Deakin because that was one of my best options in case of even the finances and the kind of course they offer. सेम मेरा भी यही था. मैंने डीकन यूनिवर्सिटी का जस्ट पेज खोला एंड वहाँ पे ऑलरेडी कुछ एजेंसीज के नाम दिए होते हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. तो आई लिव इन हिमाचल, मेरा नियरेस्ट था चंडीगढ़, तो मैंने चंडीगढ़ से अप्लाई किया. एंड प्रोसेस बिल्कुल सेम था. वीज़ा तक उन्होंने अप्लाई किया, सारी चीज़ें उन्होंने की. सिर्फ SOL पता नहीं क्या क्या था कुछ टाइप करने का, वो सब हमने किया. या
something, you know, you make an introduction of yourself and everything. Wait, You wait, give I'll to tell you what's SOP, it called. SOP, yes, you need to make a SOP, that's it. और वो भी कुछ कुछ एजेंसीज कर देती है, बट इट्स वाइज टू मेक योर ओन SOP. तो सारा प्रोसेस हो जाता है. मेरे को मेडिकल, जब मेरा हुआ मेडिकल टेस्ट, उसके 2 महीने के बाद मेरा आया वीजा. आपका वीजा कितने Mine टाइम है? literally came in less than like 10-15 days. And I was very surprised कि इतना जल्दी आया. एग्जैक्टली. पर इतना जल्दी वीजा आया, but there was no point क्योंकि घर पे बैठे थे वीजा लेके भी. कोविड बैच. तो मेरा वीजा आया 2 महीने बाद. मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका ऑलमोस्ट 1 दिन में आ गया. तो वीजा इज अ लक, इट्स अ चांस कि Yeah. अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया. एंड फिर जैसे वीजा आया उसके 2 दिन बाद मैंने अपना फ्लाइट बुक कराया एंड आई केम हियर. मैंने आधा अपना ऑनलाइन यूनिट किया इंडिया से ही, एंड आपने भी शायद से आधा अपना इंडिया से हाँ, ही किया मैंने होगा. 2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन किए because I didn't know when the borders were going to open, and I had already left my job, so I said might as well continue studying. या दैट्स ट्रू. सो ठीक है, हो गई बात हमारी. हमने फ्लाइट लिया, फिर उसके बाद जैसे वीज़ा आया देन वी केम हियर एंड सब कुछ ही बिल्कुल नया था. एयरपोर्ट से उतरते ही ऐसा लगा ओ अब बड़े हो गए हैं, वो वाला फीलिंग. इट वॉज सो नाइस. तो सबसे पहले तो मैं अपने आंटी अंकल के घर रुकी थी एंड आपने यहीं अकोमोडेशन में आ गए थे आप शायद. Actually, मैं first एक Airbnb में गई थी in the city. We stayed there for a week with my current flatmate. और वहाँ से हम लोग ढूंढ रहे थे a place near Burwood, which is close to our university. या. And through an agent, we finally found this place. ओ माइन वॉज बिल्कुल ऑपोजिट. मैंने तो इंडिया से अकोमोडेशन बुक करा लिया था, 2 महीने का यहाँ का रेंट भी दिया, बट स्टिल मैं पहले अपने अंकल आंटी के पास रही थी कि यू नो टू फैमिलियराइज विद द प्लेस, कि हाउ द प्लेस इज, क्या क्या चीज़ें होती हैं. बिकॉज यार जब फर्स्ट टाइम आते तो कुछ भी नहीं नॉलेज होता. तो येस इट हैपन्स, इट्स फाइन. एंड जैसे कि दीदी डिड कि उन्होंने एयरबीएनबी कर लिया. तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी इंडिया से देख रहे हैं अकोमोडेशन, तो इट इज़ नेवर वाइज टू बुक वहीं से, क्योंकि कभी कभी तो फोटोज में जो अकोमोडेशन दिखाती है वैसी अकोमोडेशन होती ही नहीं So है. you can always opt to tell the agent or somebody who is giving that place कि मुझे एक live video करना है आपके साथ, or Yes. just take me through the video. Yes, So wise that you can get an actual look and feel of how the place is. places, exactly. और So, इधर yeah. sorry, but इधर It's Airbnb okay. is not the cheapest. We paid quite a bit of amount for a week. तो अगर वहाँ से भी बुक होता है तो it's not a bad option if you are like definite कि ये जगह अच्छा होगा. ठीक है ठीक है. तो अकोमोडेशन कभी इंडिया से मत देखो, यहाँ आके देखो. अगर यहाँ रिलेटिव्स हैं तो पहले रिलेटिव्स के वहाँ Yes, रुको. that is very reasonable also. सबसे हाँ पैसे भी बचते हैं, सब कुछ होता है. एंड अकोमोडेशन भी अच्छी देखो. अब हमारी अकोमोडेशन बिल्कुल उन्हीं के पास है, तो इट इज़ वेरी नाइस. बिल्कुल टाइम बचता है ट्रांसपोर्ट का, एवरीथिंग. एंड मेरे से सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अकोमोडेशन का क्या करना चाहिए. तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना वो पहले डीकन रेज में रहते हैं, मतलब रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी. दे लिव देयर, दे मेक फ्रेंड्स एंड देन दे मूव आउट फ्रॉम द प्लेस एंड यू नो सी सम रेंटल बिल्डिंग्स. सो हमारा ये पूरा रेंटल, पूरा का पूरा घर हमने रेंट आउट किया हुआ है. तो आई एम नॉट लिविंग इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू वांट टू चूज इट. सो ये सब आगे अकोमोडेशन की बात है. एंड देन पीपल ऑल्सो आस्क मी कि इज इट वाइज लिविंग इन द सिटी. तो इसका आप बताओ सिमोना दीदी, इज इट वाइज? So when I first came, मैं city में रही थी the Airbnb, and that's what I thought कि this is what Australia is. Yeah. But then when I moved to the suburbs looking for a place, I realized that there's another side to Australia as well. So living here for about 10-11 months, I feel that the suburb is a little better than the city. Though I am from Bombay and I'm used to the fast-paced life, but your city can get a little overwhelming. It's constantly busy. True. And the places that you get for the amount I'm paying here, the house will be very tiny. मतलब मेरा जो अभी रूम है, I'll be paying the same for an entire house. So you're paying so much more for a tiny apartment. So as a student, I feel suburb is a good area. An area close to your university is a big positive. Because आपको पता नहीं है अगर आप casual job कर रहे हो where you will work. So from the beginning, it's better to take a place close to your university as a student. Yeah, And as you grow and maybe get a full-time position, then you can shift closer to your workplace. ट्रू. मेरा भी कुछ यही सीन था. मैं पहले बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई थी, सिटी रहना. वो अभी भी होती हूँ मैं, कभी कोई फैसिनेट पर दिमाग आ जाता है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज वाइज टू स्टे नियर योर यूनिवर्सिटी. क्योंकि मेरा कोर्स, ओके अब बात आती है कोर्स की. मेरा कोर्स है बैचलर्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज. एवरीबडी आस्क्स मी दिस. एंड दीदी का कोर्स है Masters of Marketing.
या मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग. तो मेरे कोर्स में इट इज़ रिक्वायर्ड टू कम टू द यूनिवर्सिटी टू डू प्रैक्टिकल सेमिनार. सो आई कॉन्ट लिव इतना दूर एंड आई डोंट ऑब्वियसली हैव अ कार कि मैं हर दिन ड्राइव कर कर और हर दिन सिटी से ड्राइव करना इट इज़ अ टास्क, सच्ची बताऊँ तो दिस. एंड या देर आर सम फ्यू मोर थिंग्स जो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट है कि सबसे पहले जब हम यहाँ आते हैं अकोमोडेशन हो गया, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम कार्ड. मेरे हिसाब से आते ही सिम कार्ड लेना चाहिए. तो आई स्टार्टेड विद वेरी डिफरेंट सिम्स, पता नहीं क्या क्या. लाइका मोबाइल ट्राई किया पहले मैंने, देन आई स्विच टू ऑप्टस, देन आई स्विच टू वोडाफोन, देन एमी सिम, अगेन वोडाफोन, एंड नाउ आई एम जंपिंग टूवर्ड्स बैक टू ऑप्टस. तो मेरा तो बहुत ही उल्टा फुल्टा था ये सीन. तो आई थिंक आपके पास कौन सा सिम है? मेरा वोडाफोन है. I was Yeah. lucky enough that my friend's friend who was staying here for a couple of years suggested कि this is the best SIM to take and this is the best deal to take. Yeah. So that was helpful having guidance. But I was Yeah. also talking to somebody और किसी ने मुझे बोला था कि एयरपोर्ट से मत लेना सिम. एयरपोर्ट से मत लेना, इट इज़ वेरी वेरी बैड. No, but somebody else that I spoke to in the university said कि मैंने लिया एयरपोर्ट से and he pays barely like 25-30 a month. ओह, ऐसे So- से मिल जाए तो ले लेना. Yeah. So it depends Yes. on, and you can start off with something basic and then once you get used to the place आप change कर सकते हो SIM. यस. मतलब पहले तो स्टार्टिंग में यार सब लोग ट्राई करते हैं कि कम से कम खर्चा हो, क्योंकि पहले सब कुछ यार यू आर यूजिंग योर पेरेंट्स मनी, इफ यू ब्रिंग योर मनी ऑल्सो यू विल थिंक ट्वाइस कि Plus converting कन्वर्टिंग. always तो scares you. स्टार्टिंग में बहुत कन्वर्जन, मैं ऐसे सोचती थी यार $10 का 500 रुपीज़ का वर्थ इट है या नहीं है, ऐसे सोचती थी पहले तो मैं. तो यस, तो सबसे पहले तो गो विद द बेसिक वन एंड देन यू कैन अपग्रेड व्हेन एवर यू वांट. एंड धीरे धीरे बातें भी पता चलती हैं, तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट. फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन की बात. ट्रांसपोर्टेशन के लिए हियर्स अ कार्ड नोन एज माइकी एंड हमारी पीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया. हाँ, तो ये पूरे विक्टोरिया में वैलिड है. तो यू जस्ट हैव टू हैव दिस कार्ड. यू कैन गो बाय एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, be it bus, be it trams, be it trains, and you just have to tap it once before getting into the thingy. Tram. Yeah, the tram or whatever, and you know after getting out तो आपको खुद ही fare deduct हो जाता है. But please tap your Mikeys because here people don't tap it. and फिर आता है एक गंदा सा चालान of $231. और आपको आया कभी? नहीं. मुझे भी नहीं आया, टच वुड. ओके. फिर आती है इम्पोर्टेंट और क्या क्या बातें. बैंक अकाउंट. सो आते ही यार बैंक अकाउंट बनवाओ. तो स्टार्टिंग में आपने कौन सा बैंक अकाउंट बनवाया था? I did it with Commonwealth Bank. Yeah, and I it did is it- recommended. Yeah, but do have a bank, like preferably once you have a secured place to stay, because your card will be delivered there. Or maybe you can give your relatives address क्योंकि आपको पता है कि it will be safely delivered. So give it to a place where आपको पता है कि you know you're going to stay there for a few months or somebody who's already staying there. And yeah, Commonwealth is pretty nice. There's no extra Transfers, services because yeah. you are a student. Yeah. So students have a Oh yes, मुझे advantage. एक और पॉइंट याद आया. Whatever you do, if you buy a SIM, if you get go to a bank and open a bank account, always tell them you're a student. Student discounts बहुत ज़्यादा जगह मिलते हैं. तो सिम पे भी स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है. एंड यस, एंड ऑल्सो सबसे पहले व्हेन यू कम नो अपना पासपोर्ट वगैरह सच्ची में अच्छे से कैरी करना. बिकॉज देयर वाज अ टाइम मैंने अपना पासपोर्ट अपने रूम में कहीं रख दिया था एंड आई गॉट रियली एंग्शियस कि मैंने कहाँ रख दिया एंड इट वाज द वर्स्ट फीलिंग. तो आते ही सबसे पहले ये भी रख लेना अच्छे से. एंड फिर आती है बात अकोमोडेशन की हो गई, सिम की हो गई, फिर बैंक की हो गई. ये तो बड़ा बेसिक है. फिर आता है TFN. So if you guys want to work here, you will have to apply for two things. That is TFN and Australian Super. तो TFN is basically a document जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता. It's a tax file number basically. तो अगर आपको इधर काम करना है any sort of job like casual part time like a full time, you need a TFN number because and that TFN stays with you forever. It's a unique ID for everybody. तो वो TFN आपके साथ रहता है and then you need to give it to your employer and things get whatever added deducted through that number. And when you have to repay your taxes, वो TFN से the agent can get a lot of information and then you can recover your taxes cut as well. तो TFN is like a unique ID जैसे दीदी ने बोला, बट सारे एक बार बनवा लेना. either you want to work here or not, but having a TFN it's not at all bad. And plus this is all
एवरीथिंग हियर इज, ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है इट्स फ्री. सो देयर आर सम वेबसाइट्स जो आपको चार्ज करते हैं, तो समझ जाना जहाँ चार्ज हो रहा है वो फेक I'm वेबसाइट्स a है. somebody who paid $100 for a TF when it's actually free. इट्स एक्चुअली फ्री. सो आई एम टेलिंग यू गाइस, फेक वेबसाइट्स होती हैं, तो थोड़ा सा प्लीज मेरे को टेक्स्ट करके एक बार पूछ लेना, बट आई टेल यू. एंड एक और चीज़ होती है ऑस्ट्रेलियन सुपर एनुएशन. वो होता है कि व्हेन यू वर्क नो, तो यहाँ पे पीपल डोंट बिलीव इन सेविंग्स, तो सारे के सारे अपने पैसे उड़ा देते हैं. तो ऑस्ट्रेलियन सुपर गवर्नमेंट ने एक चीज़ ऐसे अनाउंस की है कि आपकी कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो एक सर्टेन अमाउंट आपके हर बार सैलरी से एक्स्ट्रा डिडक्ट तो नहीं करता, आई थिंक एक्स्ट्रा होता है, जो आपके ऑस्ट्रेलियन सुपर में डाल देते हैं. एंड व्हेन यू रिटायर या फिर व्हेन यू लीव द कंट्री फॉर एवर, देन वो सारा का सारा मनी आपको मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट. एंड हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोगों को टैक्स भी हमारा मिल जाता है जितना भी हम लोग पे करते हैं. एंड फिर से धूप आ गई है, आई थिंक द लाइटिंग इज़ गुड, सो यस. और उसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं? Groceries expensive. ग्रोसरीज एंड एक्सपेंसेस. सो ग्रोसरीज के लिए हमें दो प्यारे प्यारे प्लेसेस, कोल्स एंड वुलीज. वुलीज इज नोन एज वुल्सवर्थ. सो यहीं से मैं सारी शॉपिंग करती हूँ. देयर इज ऑल्डी टू. तो ऑल्डी में आपको थोड़ा सा चीपर साइड में मिल जाता है चिकन एक्सेट्रा. एंड कोल्स में तो सब कुछ ही अच्छा मिलता है. वुलीज में भी सेम है. मतलब मेरे को ज़्यादा डिफरेंस अभी तक पता नहीं चला है. I personally feel Coles is a little, मतलब point few cents या $1-2 cheaper than Woolies. I Okay, feel. so we had to shift because of the light. I hope आप लोगों को हमारा थोड़ा अच्छा व्यू अब आ रहा है. So yes, हमारी अभी बात हुई थी ऑस्ट्रेलियन सुपर की, और Groceries. फिर ग्रोसरीज की हुई थी बात. तो हाँ, ग्रोसरीज तो यहाँ पे आराम से मिल जाता है. फिर आती है बात इंडियन ग्रोसरीज की. सच्ची बताऊँ, बहुत दुख होगा स्टार्टिंग में जब तुम लोग खरीद रहोगे, सोचोगे ये तो 10 रुपीज़ के लेस अभी मेरे को $4 के मिल रहे हैं. बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, पर धीरे धीरे यू अडेप्ट टू इट. एंड सब कुछ यहाँ मिल जाता है, इवन यूटेंसिल्स मिल जाते हैं. तो मैं यहाँ पे लेजिट एक भी यूटेंसिल नहीं लेकर आई थी, मैंने सब यहाँ से खरीदा है. क्योंकि यार अगर देखा जाए तो यार खुद ही 30 kgs कितना अलाउड था, 60 40. kgs 40 जितना भी होता, उसमें obviously everything लाना is not possible. So I thought कि I'll buy the utensils from here only. But some people they bring the pressure cooker from India, क्योंकि मुझे भी कभी कभी फील होता है कि मुझे भी ले आना चाहिए था, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिया वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा. तो मे बी व्हेन आई गो बैक टू इंडिया आई गेट अ प्रेशर कुकर. एंड बाकी सब मिल जाता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ You नहीं get मिलता like है. desi masalas and all also, which is good. मसालाज मिल जाते हैं, फिर घी मिल Snacks जाता मिल है, जाता है. स्नैक्स मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है. तो इट इज़ वेरी वेरी इजी. एंड स्टार्टिंग में ज़रूर प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे यू नो यू गेट अडेप्टेड टू इट, विच इज़ ग्रेट. सो ये सारी बातें हो गई, ग्रोसरीज की हो गई. अब लेट्स टॉक अबाउट यूनी, क्योंकि यूनी के बारे में लोग बहुत कुछ पूछते हैं. तो आई एम इन डीकेन यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ ऑल्सो इन डीकेन यूनिवर्सिटी. आई टोल्ड यू माई कोर्स बिफोर. तो यूनी डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कितने दिन पढ़ना है. तो एज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आप को बर्डन ना करूँ. तो मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज पढ़ती हूँ वीक में. तो इन अदर हैंड दीदी वर्क भी करते हैं. तो दीदी आप किस हिसाब से करते हो? Honestly, very badly. My majority of my study happens only जब मेरा assignment होता है or few weeks before the exam. But honestly, Deakin is very supportive when it comes to exams and assignments. So good. They're understanding like if you have a certain situation जो like काफी serious है, you can always write to them and they'll push back the date of submission. And assignments are pretty doable. अब first 2 करोगे, you will feel थोड़ा overwhelmed के बहुत है, and it's very different from what we studied in India. But once you get used to it, then it's just like it's just another assignment for you. आप कर लोगे अच्छे से. True. हाँ, तो मेरी भी एक, मैंने बताया आपको कि मैं इंडिया से काफ़ी लेट आई थी. तो जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मेरा मिड ट्राइमेस्टर ब्रेक चल रहा था. तो मिड ट्राइमेस्टर ब्रेक में होती है यूनिवर्सिटी बंद. तो माई प्रोफेसर, शी वॉज सो वेरी नाइस विद मी. शी न्यू दैट आई वॉज स्ट्रगलिंग. शी कॉल्ड मी ड्यूरिंग दोज हॉलीडेज इन द लैब एंड शी टोल्ड मी व्हाट टू डू. लाइक आई स्वेयर, इतने अच्छे प्रोफेसर्स मैंने अभी तक Sometimes देखे you नहीं luck हैं. out with like very good professors Yeah. who will like after you pass out also they'll help you with your resume or just keep in touch. And as a tip, I didn't do that, but I feel like you should have a bond, a connection with your professors, because अगर आप स्पेशली आप मास्टर्स कर रहे हो, many of them will be from the industry. So having connection can help you later like get a job. Yeah, that's true, that's true.
एंड ऑल्सो अभी आपने मेरे को रेज्यूमे याद दिला दिया, प्लीज गाइस मेक अ रेज्यूमे। यहाँ पे ऐसे नहीं चलता, रेफरेंसिंग जरूर चलती है इवन for फॉर example। कैजुअल जॉब। या कुछ भी करना है, एक अच्छा सा रेज्यूमे होना चाहिए। कहीं जगहों पे आप जाके, जो छोटी जगह होते हैं कैफेज एंड स्टफ, यू कैन गिव हैंड इन रेज्यूमेस। एल्स हियर इज इंडीड एंड सीक, जो मैं यूज कर रही हूँ आजकल, एंड दीदी ऑल्सो यूज दोस टू गेट और जॉब्स। इवन गो टू द ब्रांड का वेब पेज। या तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है यहाँ पे। और उससे मुझे एक और चीज़ याद आई, दैट मुझे एकदम से एक चीज़ याद आई और मैं भूल गई, रुको जब याद आएगा मैं बताती हूँ, ठीक है। एंड या तो यू कैन अप्लाई टू जॉब्स लाइक दैट, PR। सो गाइज मेरे को यहाँ आए हुए सिर्फ 8 मंथ्स हुए हैं, और दीदी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमारी होती है बात PR से रिलेटेड काफ़ी लोगों से, बट द थिंग इज देयर इज अ लिस्ट नोन एज SOL लिस्ट, SOL मेलबर्न। तो व्हेन यू टाइप इट, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट खुलती है, उसमें सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं जिसमें PR है। मेरे कोर्स में PR नहीं है, आपके कोर्स में है दीदी? नहीं है, हम दोनों के कोर्सेज में नहीं, क्योंकि यार जब हम इंडिया से आते हैं ना, बेसिकली हमारे को नॉलेज नहीं होती है कि हम लोग, और हम लोगों को ये होता है कि हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे But हैं। also PR नहीं है in Victoria. So if you look up, there'll be other states जहाँ पे probably आपके कोर्स का हो सकता PR है. So होगा। do a little more research on the आने से state as पहले well. प्लीज, आने से पहले सारा रिसर्च कर आओ, बिकॉज आई नो पीपल जो 4-4 साल की डिग्री करने के बाद रिग्रेट कर रहे हैं कि PR के बारे में क्यों नहीं सोचा। एंड कुछ लोगों को बाद में इंटरेस्ट आता है कि यहाँ रहना है, कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई करके चले जाते हैं। तो प्लीज डू अ गुड रिसर्च ऑन योर कोर्स, ऑन योर यूनिवर्सिटी बिफोर कमिंग हियर। एंड सारा का सारा ऑनलाइन अवेलेबल है नॉलेज, सो यू कैन ऑलवेज ब्राउज। थोड़ा टाइम लगता है यार नया नया Yeah, पोर्टल take समझने थोड़ा में। effort in researching because Research. you don't want to regret later. Yeah, exactly. एंड यस, थोड़े से मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि क्या आस्क मी क्वेश्चंस, तो देयर वर मेनी क्वेश्चंस which people asked me. Some people also asked me about the scholarship. So yes, मेरे scores काफ़ी अच्छे आए थे in grade +1 and +2, and 10th का भी देखते हैं। I think सिर्फ 10th और +2 का देखते हैं, they don't see 11th का grade, right? I don't think so. या आई डोंट थिंक सो दे सी दैट। तो मेरे तीनों ग्रेड काफ़ी अच्छे आए थे सीनियर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में, कॉल इट हाई स्कूल में, सॉरी। तो मेरे को लगा कि मेरे को बड़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली है, मुझे मिली थी 25% स्कॉलरशिप। फिर मैंने यहाँ आके सबसे पूछा, तो आई थिंक दिस इज द बेस स्कॉलरशिप विच यू गेट। I think most agencies will give you कि हाँ 20% तो मिलेगा ही. मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे को ऑफर लेटर काफ़ी ज़्यादा जगह से आया था, यूनी मेलबर्न से आया था, यहाँ से आया था, और मेरे को लाट्रोप से आया था, और पता नहीं कहाँ से आया, स्विनबर्न वगैरह पे भी अप्लाई किया था। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट आ गया था, मेरे को स्कॉलरशिप भी ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, बट ऑलवेज सी द रैंक ऑल्सो। तो रैंक के अकॉर्डिंग आई लाइक डीकन मोर, तो दैट इज़ वाई। एंड येस, अबाउट वन मोर थिंग, मुझे काफ़ी लोग लिखते हैं आप तो बड़े मज़े मार रहे हो, ये वो। जब घर का खाना खुद बनाना पड़ता है, सफाई खुद करनी पड़ती है, लॉन्ड्री खुद करनी पड़ती है, कमरा साफ करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं ना, मजे बहुत कम होते हैं। और सब Life, what we put up on Instagram is not the reality. Exactly. It's just what we want to make you see. Yeah, and we want to feel happy also, no, at times. So that is what we do Yeah. for our happiness. पूरा मैं तो कभी वो 2-3 एक वीक दिन में पूरा- बाहर जाके फोटो रखते हैं हाँ। खाने का, that doesn't mean we eat out all the time. Yeah. We eat बस horrible मेरा food यही जो है घर कि में बनाते हैं घर हाँ, पे. मैं मतलब एक दिन का फोटोज डिफरेंट डेज डाल दूंगी, बट इट्स लाइक दैट, नहीं Yeah. मिलता टाइम। एंड घर वाले And भी it's यही बोलते difficult हैं। because especially like culture is different. There's nobody to help you with other things. So even if you've had a bad day, tiring day, घर पे आके खुद का खाना खुद बनाना पड़ता है, and you have to like clean your dishes after that. So it can get a little overwhelming in the beginning. Exactly. But please don't lose hope. You can do it. मैं तो यही बोलती हूँ, don't lose hope. You can do it. यहाँ पे आए हो, you have to do it. This and that. And also यहाँ पे almost सारा कुछ 5 बजे बंद हो जाता है. एंड लेटेस्ट सैटरडेज को और फ्राइडेज को सब ऑलमोस्ट 9 o'clock तक खुला होता है, बट सब कुछ 5 o'clock बंद हो जाता Even most है। restaurants will shut at 9. सही में Uber And Eats Indian में restaurant और like some odd places ऐसा 12 बजे तक खुला Uber Eats में रहेगा. भी बड़ा ऐसे ना चुन के ढूंढना पड़ता है रात को, अगर बहुत भूख लगे और मन नहीं हो कुछ खाना बनाने का। Tough life it is. And yes, we were on the question. तो सच्ची बताऊँ तो सब कुछ का रिसर्च कर आना, सब कुछ। I am always there, available on Instagram, on YouTube.
in the comment section. I'll obviously मैं एक दिन में नहीं reply कर पाती हूँ सबको, but I'll really try to clear all your doubts. ठीक है. And yes, the next was the assignments and exams are tough at Deakin. So what I feel is मेरे को assignments ना starting में बड़ी difficult लगी, क्योंकि यहाँ पे करते हैं लोग referencing, and referencing नहीं पता था मुझको क्या होता है, but once you get a hang of it तब easy हो जाता है. And also the portal I feel is very informative. अगर आप first time कर रहे हो, like because the professors now first time कर रहे हो, they'll take you to a page where लिखा होगा कि referencing कैसे करना है, the best way to do referencing, things like that. So like once you read it and see few examples, I don't think it should be such a big. और यहाँ पे plagiarism यार बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपने plagiarism किया तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हो, तो प्लीज़ अपनी असाइनमेंट्स अच्छे से करना. एंड एग्जाम्स कुछ ओपन बुक होते हैं, कुछ ओपन बुक नहीं होते हैं, तो ये मत सोचना कि ओपन बुक ही होंगे. और ओपन बुक में भी पता नहीं चलता है कुछ भी, क्योंकि ओपन बुक के लिए भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, और बहुत ही ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, केस स्टडीज आते हैं, तो दैट इज़ थोड़ा सा वैसे. एंड ओके, व्हाट आर योर एक्सपेंसेस एंड हाउ डू यू मैनेज इट. यार एक्सपेंसेस ज़्यादातर ग्रोसरीज का होता है यहाँ पे. ट्रैवलिंग का कभी कभी हो जाता है, अगर मान लो पीटीवी से नहीं ट्रैवल करना है, मायके से नहीं करना, तो ऊबर बहुत एक्सपेंसिव. अगेन समथिंग हैपेंड, सो येस आई वाज टॉकिंग अबाउट ऊबर. ऊबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव अगेन, तो कभी कभी वो एक्सपेंसेस होते हैं. बुक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन सब मिल जाता है. एंड और क्या एक्सपेंसेस होते हैं दीदी? Groceries I think will be your biggest expense and rent. रेंट, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट रेंट. एंड एजुकेशन का जो पूरा एक्सपेंस चलता है वो तो होता ही होता है. Half my pay goes in rent. Because rent is expensive. So one thing when you're seeing accommodation, see something that's very basic, because you'll also have to pay over and above water bill and electricity bill and things like that. So take a place जिसका रेंट अच्छा हो. स्टार्टिंग में यार पता है क्या होता है, अगर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो फ्रेंड्स के साथ अकोमोडेशन देख सकते हो. अगर स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है तो सच्ची में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई अपार्टमेंट विद 2 more people एंड दीदी इज शेयरिंग विद 5. 3 more, so like 4 of us. 4 people, तो या दैट्स गुड. फिर उसके बाद बेस्ट थिंग अबाउट स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया. Tricky question. ओके, बस ये है यार थोड़ा सा बेस्ट थिंग. ओके, मेरे को best इंडिपेंडेंस के बारे में पता चला कि क्या होता है. आई वाज सो डिपेंडेंट ऑन माय मॉम एंड माय डैड फॉर एवरीथिंग. आई यूज्ड टू आस्क देम, मतलब ट्यूशन भी जाना होता था, भाई को बोलती थी कि ओ मुझे छोड़ दे, गाड़ी में छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे. लाइक मनी का वैल्यू नहीं था इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ के सब हुआ है, तो यू नो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील होता है व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंट हियर. I feel also the best part of Australia is because it's a place where बहुत लोग आते हैं to study. It's a mixed culture of people. Yes. So people are welcoming. People know that they're respectful of the fact that you're an international student, because not everybody is a local here. There are lots of immigrants. So people are respectful regardless of the kind of work you're doing or regardless from the place you come from. Or you get to meet people from different nationalities and cultures, which I feel is a fun thing. दैट तो आई ऑल्सो लाइक. एंड यहाँ पे सॉर्ट ऑफ मतलब वो भी होता है कि स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट, बट बाद में बहुत अच्छा से हो जाता है मैनेज, तो डरना नहीं है किसी चीज़ से. एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंटर्स ऑफ ऑल, एंड एवरीबडी आस्क्ड मी व्हाई नॉट इंडिया. तो आई वांटेड टू डू समथिंग इन मेडिकल. सो मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था. मेरा नीट का स्कोर इतना भी अच्छा नहीं था, एंड रिजर्वेशन भी होता है इंडिया में. आई शुड कट दिस, आई एम सॉरी, बट येस. तो थोड़ा सा मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा था आफ्टर माई नीट रिजल्ट्स, बट इट्स ओके. आई थॉट कि चलो लेट अस ट्राई समथिंग एल्स इन माई फील्ड. तो मैं तो कनाडा के लिए अप्लाई कर रही थी. मतलब सबका होता है ना बचपन से, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे. All of a sudden my dad planned Australia, and I'm so happy that he made this choice for me. Really, if my dad is watching it, big shout out to him. And yeah, तो मेरा तो ऐसा बना था. और दीदी का भी जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया था, तो उनका भी यहाँ का बन गया. That's good. यहाँ पे सब अच्छा है, वेदर को छोड़ के. वेदर आप बताओगे, मैं तो इरिटेट हो चुकी हूँ. Well, people say that Melbourne goes through 4 different weathers in a day, because like when you wake up it's nice, bright and sunny. During the day suddenly cold हो जाएगा, and by the time evening when you're returning from work it's raining. So you can't predict the weather.
दिन में गर्म होगा, suddenly in the evening it will become chilly. So you literally have to carry a jacket with you wherever you go because पता नहीं कब ठंडा हो जाएगा. Exactly. And the sun is also pretty like strong here, like because the ozone layer has a hole in Australia, so the sun literally bites you through the skin. Exactly, guys. Always apply. Yes, as Didi said, ozone layer depletion है यहाँ पे, तो you should always carry a sunscreen, a good SPF. मेरे पास 50++ भी है, और उससे above भी 150 टाइप भी आती है डर्मा स्टोर्स में, सॉरी, केमिस्ट वेयरहाउस वगैरह में मिल जाता है. एंड यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाता है, तो प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि इंडिया से सब कुछ ले आते हैं, ये वो सब कुछ मिल जाता है. बस ये है कि थोड़ा प्राइस में है डिफरेंस, बट सब मिल ही जाता है. तो आई थिंक सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंटर, राइट? I think so. बट स्टिल इफ़ यू गाइज फील लाइक कुछ बचता है तो लेट मी नो. बट नाउ मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े दिनों में वॉलेट अपने अंकल आंटी के पास जाने का सोच रही हूँ. तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो रह रहे हैं यहाँ पर 12 ईयर्स से, तो मे बी वो अच्छे से हमें आगे बता सके. तो अब मैं आपको मिलूँगी 2 या 3 दिन बाद. ओके, थैंक यू सो मच अमोल दीदी फॉर दिस वीडियो, फॉर कमिंग हियर, अपना टाइम निकालने के लिए. क्योंकि मैंने सबको टेक्स्ट किया, कोई भी ऑनलाइन होके भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया, बट दीदी रिप्लाई टू मी. सो यस, I have to for Tamanna because she does amazing makeup. मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है, लिपस्टिक लगाया है बस. बट यस, She's my makeup artist. ओके गाइज, सो या लेट्स मीट यू आफ्टर 2 days. सो गाइज, अभी हम लोग वॉलेट में आए हैं टू मीट डिम्पल आंटी एंड मनीष अंकल. सो डिम्पल आंटी इज़ हियर सिंस 10 years, like more than 10 years I think so. And I think she is the right person to ask all the questions जो बच चुके हैं. तो let us do it today. So आपको कुछ बोलना है डिम्पल आंटी? हेलो एवरीवन, आई होप मैं तमन्ना के सारे आंसर्स दे पाऊँ. सो देखते हैं कि तमन्ना का क्या क्वेश्चन है. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इट लाइक लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एज कम्पेयर टू इंडिया? ओके, सो वीव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस पास्ट 10 years. तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है एक्चुअली. जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, लेकिन जब हम यहाँ आए तो वो ऑपोजिट हो गई वही चीज़. वहाँ पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए. अगर आपको कहीं भी सक्सेसफुल होना है तो यू नीड लाइक गुड क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड यू नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. और स्किल्स को ज़्यादा वहाँ महत्व नहीं देते हैं. तो यहाँ पे उल्टा है एक्चुअली. क्वालिफाइड होना तो खैर ज़रूरी है, बट मीन्स लिटरेट होना ज़रूरी है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा स्किलफुल लोगों की है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, टाइलर, प्लम्बर, इस तरह के लोग यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल हैं. और उनकी यहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हाँ, इट इज़ लाइक डिग्निटी ऑफ लेबर, देयर इज़ लाइक इक्वालिटी. लेकिन इंडिया में ये चीज़ थोड़ी सी हमें मिसिंग है. जैसे वहाँ क्लास सिस्टम है, एक स्टेटस माना जाता है. यहाँ पे तो एक बंदा जो क्लीनिंग भी कर रहा है उसकी भी वही रिस्पेक्ट है. और अगर आप उसकी सैलरी देखोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो रियली गुड, दैट इज गुड. तो मतलब कहने का कि हर बंदे की यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है और उसको इक्वालिटी में लेके चलते हैं. प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड. इवन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, व्हिच आई लाइक अबाउट हियर. हाँ, स्टूडेंट्स इंडिया में ज्यादातर 18 years old, 19 years old ज्यादातर कोई काम नहीं करता है. यहाँ पे लोग तब भी काम करते हैं. हाँ, इंडिया में क्या होता है, जैसे हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं. हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टेंशन मत लो. बट आई थिंक यहाँ पे ये चीज मतलब सीखने को मिलती है कि पढ़ो लेकिन डू ये हार्ड वर्क. व्हाट इज हार्ड वर्क, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे एक एज होती है, पर्टिकुलर एज, उसके बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई आप जाओ और अपना काम ढूंढो या अपनी थोड़ी अर्निंग करो, घर पे कंट्रीब्यूट करो. तो दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. उससे मतलब एक बंदा सीखता ही है. एग्जैक्टली, वो तो है यहाँ पे. सो आई थिंक हमारा आंसर थोड़ा सेटिस्फाइड था. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मिस अबाउट इंडिया? Oh my God, this is one of the trickiest मैं तो question. फूड बोलूंगी. हाँ, और इंडिया जैसी कंट्री कोई नहीं है. इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, नो मैटर व्हाट, कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वहाँ जैसे मैं बोलूँगी कि इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है. इंडिया को यहाँ पे हर इंडियन जो है
इंडिया को मिस करता है, वो जैसी मर्जी हो अपनी कंट्री सबको अच्छी लगती है। इंडिया में सब कुछ है, इनफैक्ट इंडिया इज चेंजिंग अ लॉट नाउ, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं, जो और भी कई चीजें वहां पे स्टार्ट हुई हैं, जैसे जरूरी नहीं है जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही सक्सेसफुल हो रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे जो चल रही हैं, इसमें भी लोगों को काफी, जैसे स्पेशली फॉर वुमेन जो है उनको काफी प्रोत्साहन मिला है। तो इंडिया बदल रहा है, और इंडिया जैसी कंट्री कोई नहीं है। बाहर आके ये चीज हम रियलाइज करते हैं, अपनी कंट्री की हम ज्यादा वैल्यू करते हैं। यहाँ पे ज्यादा सोशल लाइफ भी नहीं है। हाँ, दिस इज लाइक वन ऑफ द ड्रॉबैक। आप बाहर की कंट्री में जाते हो तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यू मिस योर फैमिली, यू मिस योर फ्रेंड्स तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो बात इंडियन वहाँ पे जो एक अपना माहौल होता है ना, वहाँ पे लाइफ जो है वो 5 बजे के बाद स्टार्ट होती है ना। यहाँ 5 बजे सारे दुकानें बंद, जाओ घर, अपना खाना खाओ, सो जाओ, कल फिर काम की तैयारी करो। तो ये चीज हम बहुत मिस करते हैं। जैसे इंडिया की चहल पहल, रौनक, ये सारी चीजें यहाँ पे है कि अपनी वीरान गलियां, अपने काम पे जाओ, वापस दिवाली में भी दिवाली जैसा यहाँ बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। तो इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है, आई वुड से। ये तो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन थिंग यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ओके, अगर लाइक करें तो लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स। हमने जैसे सीखा भी है बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। पहली बात तो यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सीलेंट हैं। जो हार्ड वर्किंग है, जिसको काम करना है या सीखना है, तो वो किसी भी एज से वो स्टार्ट कर सकता है, सीख सकता है। एज इज जस्ट अ नंबर हियर। तो पुलिस की जॉब करनी है या कोई और अच्छी जॉब करनी है, या नो मैटर व्हाट यू वांट टू बिकम, देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू एंटर। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है, ये आपको पता है। और सोशल लाइफ नहीं है, एक ड्रॉबैक तो है यहाँ का। व्हाट वाज द क्वेश्चन? वन लाइक एंड वन डिसलाइक। वन डिसलाइक, ओके। डिसलाइक, जैसे हम इंडियंस, हमारा क्या नेचर होता है, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। हम बड़ा टीम वर्क अच्छा करते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, कोऑपरेटिव भी होते हैं, और एजुकेटेड भी होते हैं। तो वी लाइक टू वर्क आवर बेस्ट। लेकिन क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द डे, यूजुअली, नॉट इन ऑल प्लेसेस आई वुड से, बट मोस्टली यू आर नेवर गिवन द क्रेडिट, ठीक है। तो आप दूसरी कंट्री में आओगे, रेसिज्म तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। कहने के लिए तो होता है कि रेसिज्म नहीं है, ये वो, बट यू वुड फील समवेयर बिकॉज यू विल नॉट गेट द क्रेडिट विच यू शुड बी गेटिंग, विच यू वुड हैव गॉट इन योर ओन कंट्री एक्चुअली। सो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। आई वुडेंट से कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग रेसिज्म है या कुछ इस तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लेकिन स्टिल लाइक आई थिंक समटाइम्स जो क्रेडिट एक को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिल पाता शायद, वो तो एक रहता है। ये ड्रॉबैक तो है। बाकी अपनी फैमिली को आप मिस करते हो, वो अपनी कंट्री जैसी तो फिर कंट्री नहीं है ना कोई, वो तो है ही। तो ये ड्रॉबैक है। सो यही सारे क्वेश्चंस थे, एंड थैंक यू सो मच आंटी फॉर गिविंग योर टाइम एंड इस वीडियो में आने के लिए। बिकॉज जब से मैंने चैनल में ऑस्ट्रेलिया के बारे में डालना शुरू किया है, सब लोग मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसे चल रहा है सब कुछ। मैंने सोचा कि एक बार मैं वीडियो बना ही देती हूँ। आई थिंक तमन्ना इज वेल सेटल्ड। मैं तुम्हारे व्यूअर्स को बता देती हूँ कि तमन्ना इज वेरी वेल सेटल्ड। एंड इनफैक्ट कोई भी इंडियन जो है अगर अपनी कंट्री से यहाँ आता है, वो हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं इंडियंस, एंड हार्ड वर्क तो होते ही हैं, ठीक है। सो और एजुकेटेड भी होते हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं। इंडिया का कितना स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम है ना, यू नो। तो हम जब इधर आते हैं तो डोंट वरी, हम लोग सक्सेसफुल होते ही होते हैं। नो मैटर व्हाट, व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल यू विल सी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर इंडियन। व्हेन यू गो टू अ हाई क्लास कंपनी यू विल सी द बॉस इज एन इंडियन, ठीक है। तो ऐसा है कि अच्छा है। That's nice. So you're doing well. Yeah, thank you. So I hope guys आपके questions almost सारे हमने answer कर दिए होंगे, but still if you have any questions please do not hesitate to just ask me on Instagram or just comment down below in the comment section. And thank you so much guys for watching my video. I hope you guys enjoyed watching it, and if you did, please do not forget to give me a like, a comment, and also subscribe to my YouTube channel.
So signing off until next time. Bye.